Hello students, welcome to this lecture. In the last lectures we have discussed about the PN junction. Also we have discussed the variation of charge density, electric field and the potential along the length of the PN junction. In this lecture we will discuss the energy band diagram of the PN junction, and also we will derive here a very important expression for the potential barrier and the energy barrier. So now what we have in case of PN junction, so what we have the combination of p-type material and n-type material, and a junction is formed between the p-type and n-type material is called as the PN junction. Last lecture में बच्चों हमने देखा था due to the diffusion of electrons from n side to p side and the holes from p side to n side, a depletion region is formed. So now this is what I am showing here, the depletion region. This is xp and this is xn, and the total width is w. The region of the immobile charge carriers is called as the depletion region, that we have studied in detail in the previous article. Also we have derived the expression for the width of the depletion region in the last lecture. So now what we have in this article, suppose we have the formation of the PN junction. So in this case what we have, firstly we have, this is the Fermi energy level for the PN junction, and for the PN junction the Fermi energy level remains at the same height throughout the junction. Clear? So now we suppose that three portions, this is p type or the p side, this is the n side of the junction, and center में बच्चों हमारे पास क्या है, this is called as the depletion layer or the depletion region. Clear? So now in this case we know that for the p side जो हमारा Fermi level है, it shifts towards the valence band. So we have, this is the position for the valence band for the p side. So I am representing here the energy for the valence band for the p side, and this Fermi level shifts towards the conduction valence band. तो इसका जो conduction band होगा वो थोड़ी सी height में हम draw कर सकते हैं students. So now this is what, this is the EC level for the p type. Now in the same way for the n-type material, this Fermi level shifts towards the conduction band. So now we suppose here the position for the conduction band for the n-type material, and in this case जो हमारा valence band होगा वो काफ़ी नीचे आएगा, and suppose this is the position for the valence band for the n-type material. So we have conduction band and valence band for the p-type material. Similarly we have conduction band and the valence band for the n-type material. Also we know that if this is not a p-type material, मतलब इस टाइम ये हमारा material p-type है, बट अगर ये p-type material ना हो तो जो हमारा Fermi level होगा for the intrinsic material, that will just lie in the center of the valence band and the conduction band. तो हम यहाँ पे कहीं पे suppose कर लेते हैं, this is what, this is EI. This EI is what, if we suppose that this material is intrinsic, then the Fermi level for this intrinsic material will just lie in the mid of EC and EV. Clear? In the same way यहाँ पे बच्चों in the n type जो हमारा ये होगा Fermi level वो कुछ इस तरह होगा, this is EI. Clear? And we have also defined, this is what, this is EC for the conduction band, this is EV for the valence band, and we have defined one term, this is called as the EG. EG is what? EG is called as the forbidden energy gap. This is just the difference of EC minus EV. And also for the Fermi level, we know that Fermi level for the intrinsic material is just in the center of EC and EV. मतलब this Fermi level is equally distant from the EC as well as for the EV. तो ये हमारा गैप बच्चों कितना हो गया, this gap is
Eg/2 and this gap is again Eg/2. इसको चाहे मैं बाहर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है. So this gap is what? This is Eg/2. In the same way, if I draw here, this is what? This is Eg/2 and this is what? Again Eg/2. Clear? So now if I draw the combination of EC level from P to N side, so we will draw like this. In the same way for the valence band and for the intrinsic Fermi energy level. Suppose we know that this is what? If we suppose that this is for the pure material, but in actual practice we have this Fermi level for the P type material. इसका मतलब ये हुआ अगर हमारा ये मटेरियल प्योर होता तो हमारा फर्मी लेवल यहाँ पे होना था, बट अब ये मटेरियल प्योर नहीं है, पी टाइप मटेरियल बन गया है, तो ये फर्मी लेवल यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड. हमने बच्चों ऑलरेडी पढ़ रखा है इन केस ऑफ पी टाइप जो हमारा फर्मी लेवल है सेंटर से नीचे चला जाता है टुवर्ड्स वैलेंस बैंड, और एन टाइप मटेरियल में वो सेंटर से ऊपर चला जाता है फॉर द कंडक्शन बैंड. सो लेट द शिफ्ट इन द पी टाइप मटेरियल इज EP. सिमिलरली यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है, फर्मी लेवल यहाँ पे आना चाहिए थे फॉर द प्योर मटेरियल, बट ड्यू टू एन टाइप इम्प्योरिटी, मतलब ये मटेरियल एन टाइप बन गया तो फर्मी लेवल ऊपर की तरह शिफ्ट हो गया. किस तरफ? टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड. लेट द चेंज इज EN. क्लियर? सो EP इज द शिफ्टिंग. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, EP is what? Shift in Fermi level. EP is the shift for the Fermi level in P type, and EN is what? Shift in Fermi level in N side. Clear? So the total difference between the shifting or the total shift from P side to N side can be written as, if I am writing here the total shift, it can be written as total shift in PN junction is, which is represented by EB, which acts like as the energy barrier. This is simply equal to EP plus EN. क्लियर? अगर बच्चों मैं ये वाला डिफरेंस देखूं, दिस वन डिफरेंस, this is what? This is EB, and this is also equal to this one, EB. Or the same way we have this one. This is again EB. So now what we have? अगर हम इसको लिखें EB is what? EP plus EN. तो ये मेरी स्टूडेंट्स हो गई इक्वेशन नंबर 1. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल बैरियर और फॉर द एनर्जी बैरियर. क्लियर? सो नाउ व्हाट वी हैव. अगर बच्चों हम देखें फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द डायग्राम, इट इज क्लियर दैट अगर बच्चों मैं देखूं इन P साइड, ये हमारा कौन सी साइड है बच्चों? दिस इज P साइड, और इधर ये हमारी कौन सी है? मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, मैंने साफ कर दिया. दिस इज N साइड एंड P साइड. सो इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम इन P साइड. सो व्हाट वी हैव, P साइड में अगर बच्चों हम बात करें, दिस माइनस दिस, Eg/2 माइनस EP, this is simply equal to, this is Eg/2 and ये हमारा कितना है? EP. तो अगर हम माइनस कर दे दोनों को तो ये इतना पोर्शन बचेगा. This portion is what? This level is what? This is the EF level. EF माइनस ये नीचे वाला लेवल क्या है बच्चों? EVP. EVP. So this is my equation number 2. So now in the same way from the N side, from N साइड, अगर हम बात करें बच्चों N साइड में,
दिस इज व्हाट, दिस इज Eg बाई 2 और ये हमारा कितना है, दिस इज En। तो बाकी कितना बचा, Eg बाई 2 माइनस En, Eg बाई 2 माइनस En विच इज इक्वल टू, ये हमारा सारा कितना है बच्चों, Eg बाई 2, इतना कितना है En, ये बाकी पीछे कितना बचा, दैट इज Eg बाई 2 माइनस En। और ये बेसिकली है क्या, दिस वन माइनस दिस वन, ऊपर है हमारे पास ECN और जो ये वाला लेवल है दिस इज व्हाट, दिस इज EF। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ी सी स्पेस बना लूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने डायग्राम ज़्यादा बड़ी बना दी आपको समझाने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना आर्टिकल यहीं पे अब डायग्राम के साथ ही ऐसे ख़त्म कर दें। सो व्हाट वी हैव, सो इफ़ आई ऐड equation number 2 and equation number 3, so this EF will cancel out. Adding equation 2 and 3 we get, so what we get, left hand side बच्चों ऐड कर दें, this is Eg by 2, this is Eg by 2, this is Eg, this is minus EP, this is minus En, तो ये बनेगा minus EP minus En, राइट हैंड साइड। EF और ये EF पॉजिटिव, ये EF नेगेटिव, जब दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशंस को ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे है माइनस EVP और यहाँ पे है ECN, तो मैं पहले पॉजिटिव रकम को आगे लिख लेता हूँ, दिस इज ECN माइनस EVP, तो ये मेरी इक्वेशन बनी इक्वेशन नंबर 4। सपोज दिस इज माई equation number 4. So now what I will write down, we want to calculate the value for EB and we have seen that EB is what, EP plus EN। अगर मैं देखूं बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं EP and EN और दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन कर दूं, so this is what, EP plus EN which is equal to ECN minus EVP, and this is what, this is simply our EB which is the energy barrier, so EG minus EB which is equal to ECN minus EVP, और इसको मैं दूसरे साइड में ले जाऊंगा, so EB is what, this is EG माइनस, और ये अगर बच्चों मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लूँ, EB दूसरी साइड चला जाएगा और ये सारा फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, so this is what, this is ECN minus EVN, clear? So now this is our equation number 5, so we will solve this equation. So now what we have, तो अब इक्वेशन नंबर 5 में बच्चों अगर हमने EB फाइंड आउट करनी है तो मुझे ये EG और ECN माइनस EVP, सॉरी यहाँ पे बच्चों EVP, मुझे इस चीज़ की फॉर्मुलेशन का पता होना चाहिए। सो नाउ व्हाट वी हैव, अगर हमने, आपको याद होगा एक रिलेशन पीछे पढ़ा था, वी नो दैट Ni स्क्वायर इज सिंपली इक्वल टू NC NV e रेस्ट पावर माइनस EG बाई KT। स्टूडेंट्स हमने एक ये वाला रिलेशन पढ़ा था, इस रिलेशन में हमने क्या किया था, हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन को यूज़ करके Ni स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू Ne इंटू NH, हमने, आपको याद होगा मैं आपको बताता हूँ, हमने ये वाला रिलेशन किया था, Ni स्क्वायर इज़ व्हाट, Ne NH, और हमारा Ne बच्चों क्या होता है, Ne हमारा होता है NC e रेस्ट पावर EF माइनस EC बाई KT, और NH बच्चों हमारा क्या होता है NV e रेस्ट पावर EV माइनस EF बाई KT। मैंने ये चीज़ ली थी, उसके बाद मैंने दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख, NC NV e रेस्ट पावर, देखो बच्चों यहाँ पे है EF माइनस EC, यहाँ पे है EV माइनस EF, यहाँ पे EF प्लस, यहाँ पे EF माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या EV माइनस EC बाई KT, और हमारा EG होता क्या बच्चों, दिस इज EC माइनस EV, तो यहाँ पे है EV माइनस EC, तो ये बनेगा Ni स्क्वायर इज इक्वल टू NC
एन वी ई रेस्ट पावर माइनस ई जी बाई के टी। मैंने आपको फिर से बता दिया। तो हमने ये वाला रिलेशन बच्चों यहाँ पे लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे चाहिए ई जी, तो इस फॉर्मुलेशन से मेरा ई जी आ जाएगा। तो मैं एक्सपोनेंशियल टर्म को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। सो ई रेस्ट पावर ई जी बाई के टी विच इज इक्वल टू एन सी एन वी बाई एन आई स्क्वायर, टेकिंग log on both the sides, taking log. So what we get Eg by Kt is equal to log of Nc Nv by Ni square. क्लियर? तो अगर मैं यहाँ से बच्चों Eg की एक्सप्रेशन लिखूँ तो Eg मेरा क्या आ गया, सिंपली मैं Kt को मल्टीप्लाई कर दूंगा, Kt log of Nc Nv by Ni square। ठीक है, तो ये मेरी 5 नंबर इक्वेशन, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 का नाम देता हूँ। ठीक है, और हमें अब चाहिए एक्सप्रेशन फॉर ECN माइनस EVP। क्लियर? सो मैं एक बार इसको बच्चों यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला लेफ्ट साइड पे मैं ये वाला फॉर्मुलेशन बनाऊंगा। तो EB हमारा क्या है, EG माइनस ECN माइनस EVP। Clear? So we will now solve for this bracket. Clear? So now what we have? एक एक्सप्रेशन बच्चों हमने और बनाई थी फॉर द फर्मी लेवल इन केस ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। तो हमने क्या लिखा था बच्चों उसमें, सो व्हाट वी हैव, फर्मी लेवल फॉर पी टाइप मटेरियल्स, हमने उसका फॉर्मुलेशन बनाया था। फर्मी लेवल इज व्हाट, दिस इज ई वी फॉर पी टाइप, यहाँ पे भी लिख लेते हैं दिस इज फॉर पी टाइप, प्लस के टी लॉग ऑफ एन वी बाई एन ए। क्लियर? ये हमने बच्चों एक फॉर्मुलेशन बनाया था फर्मी लेवल फॉर द पी टाइप मटेरियल। सिमिलरली फर्मी लेवल फॉर एन टाइप मटेरियल, तो इस केस में बच्चों हमने फॉर्मुलेशन बनाया था ई एफ फॉर एन टाइप इज ई सी फॉर एन माइनस के टी लॉग ऑफ एन सी बाई एन डी। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, सो दिस इज व्हाट ई एफ पी फर्मी लेवल फॉर पी मटेरियल विच इज दिस वन, और ये हमारा EVP इससे थोड़ा सा ऊपर है, वो ये वाला फैक्टर है। ठीक है, फॉर द एन टाइप मटेरियल EF फॉर एन टाइप विच इज दिस वन, क्लियर, इज बिलो द ECN मतलब दिस वन बाय अ फैक्टर ऑफ दिस वन। क्लियर? और अगर मैं फ्रॉम द डायग्राम देखूं, हमारी ये वाली लाइन थ्रू आउट द जंक्शन सेम चल रही है, मतलब हमारा EF फॉर P टाइप एंड EF फॉर N टाइप हमारा क्या है बच्चों, सेम चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द डायग्राम it is clear that what we have, EF for P is equal to EF for N, EF for P is equal to EF for N टाइप। तो मैं बच्चों क्या करूंगा, अब वैल्यूज रखूंगा, EF फॉर P टाइप हमारा फॉर्मुलेशन था EVP प्लस KT log ऑफ NV बाई NA। ठीक है, और EFN का फॉर्मुलेशन अभी मैंने लिख रखा है विच इज इक्वल टू ECN माइनस KT log ऑफ NC by ND। क्लियर? वी हैव दीज टू फॉर्मुलेशंस, और मुझे वैल्यू चाहिए बच्चों ECN माइनस EVP। तो ECN माइनस EVP, इस रकम को मैं इधर ले आऊंगा और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। सो ECN माइनस EVP विच इज इक्वल टू KT log ऑफ NV बाई NA प्लस KT
log ऑफ एन सी बाई एन डी, ठीक है। और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इसकी डायरेक्ट हम वैल्यू वहाँ पे रख देंगे। सो ई सी एन माइनस ई वी पी विच इज़ इक्वल टू के टी, बच्चों कॉमन आ गया। सो दिस इज व्हाट लॉग ऑफ एन वी बाई एन ए प्लस लॉग ऑफ एन सी बाई एन डी, ठीक है। और हमें एक रिलेशन बच्चों और पता है, log a plus log b is what? This is log a into b. So using the property log a plus log b is log of ab. So what I can write down then? ECN minus EVP which is equal to KT log of this one into this one. So this is NV NC by NA ND, ठीक है। सो वी हैव दिस फॉर्मूलेशन। अब इस फॉर्मूलेशन को बच्चों हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी? दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 5। सो पुट द वैल्यूज, अगर मैं इसको 6 नंबर और इसको 7 नंबर ले लूँ, सो वी विल पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 इनटू इक्वेशन नंबर 5। पुट द values from equation 6 and 7 कहाँ पे बच्चों? इन इक्वेशन नंबर 5। तो बनेगा क्या? ई बी इज वॉट? दिस इज ई जी विच इज के टी लॉग ऑफ एन सी एन वी बाई एन आई स्क्वायर माइनस, बिकॉज वी हैव नेगेटिव साइन हियर, एंड दिस वैल्यू इज दिस वन which is again KT log of this is NC NV by NA ND. So we have this formulation. तो अगर मैं इस फॉर्मूलेशन को बच्चों सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखते हैं हम। तो EB is what? अब देखें तो यहाँ से KT और यहाँ से भी KT कॉमन आ जाएगा। So this is KT और अंदर क्या बचा? log of NC NV by NI square minus log of NC NB by NA ND। और यहाँ पे भी बच्चों हम सेम एक इस तरह की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। तो उस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? log of A minus log of B which is equal to log of A by B। तो हमारा EB क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू KT log of this is NC NB by NI square, और ये नेगेटिव है तो ये रिवर्स हो जाएगा बिकॉज A by B बन जाएगा। तो ये टर्म नीचे आएगी तो फिर उसको रिवर्स कर देंगे। तो NA ND हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा NC NB। तो ये सारा फैक्टर बच्चों कैंसिल हो गया। तो हमारे पास EB का आंसर आया, दिस इज इक्वल टू KT log of NA ND by NI square. Clear? So this means that the energy barrier in case of PN junction is directly proportional to the Na concentration, Nd concentration, and it is inversely proportional to the Ni concentration. Na concentration is what? Concentration of acceptor atoms. And is what? Concentration of donor atoms. And Ni is what? Intrinsic charge, concentration of intrinsic charge carriers. So we have this formulation for the energy barrier, and we know that E is what? This is E into V। तो अगर हम BV की एक्सप्रेशन निकालें, सो दिस इज सिंपली EB बाई E। तो ये क्या बन जाएगा? KT बाई E log ऑफ NA ND बाई NI स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूलेशन है फॉर द एनर्जी बैरियर, एंड दिस इज द फॉर्मूलेशन फॉर द पोटेंशियल बैरियर इन केस ऑफ
PN जंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो इसके बाद बच्चों एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। सो व्हाट वी हैव गिवन in a germanium diode, Na and Nd are given and also Ni is given. Calculate the height of the potential barrier at 27 degrees Celsius. तो बच्चों क्या क्या हमें दिया हुआ है? Temperature is what? 27 degrees Celsius and we will convert in the Kelvin scale. So what we have? We have 300 Kelvin. And A, which is the acceptor concentration is what? 8 into 10 to the power 20 meter minus 3. And D is what? Again equal to Na, which is 8 into 10 to the power 20 m raised to the power minus 3. Ni is what? This is 2 into 10 raised to the power 19 m raised to the power minus 3. So we have to find out the value for the potential barrier. मतलब we want to calculate VB। अभी हमने एक फॉर्मुलेशन किया, उसमें बच्चों हमने लिखा था EB इज व्हाट? दिस इज KT log ऑफ Na Nd बाई Ni स्क्वायर। क्लियर? तो इस केस को बच्चों अगर हम सभी वैल्यूज को रख दें तो हम EB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वी नो दैट E इज व्हाट? QB। एंड यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये Q की वैल्यू E होगी, तो हम V की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे E बाई स्मॉल e। ठीक है, तो वैल्यूज हम रखते हैं बच्चों। अगर हम वैल्यूज रखें बच्चों देन व्हाट विल बी दी आंसर? K हमारी कितनी है? K इज व्हाट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज 1.38 इंटू 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन। ठीक है, सो दिस इज 1.38 इंटू 10 to the power minus 23 इंटू 300 इंटू, यहाँ पे लोग बच्चों किसके अकॉर्डिंग होता है? विद द बेस E है। अगर हम इस बेस E को 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो हमने एक प्रॉपर्टी सुनी है, log ऑफ x विद बेस E इज 2.303 log ऑफ x विद बेस 10. So now I am changing the base of the log from E to 10. तो यहाँ पे एडिशनल मेरे पास आ जाएगा 2.303 log ऑफ विद द बेस 10, ऊपर है Na Nd बाई Ni स्क्वायर। तो मैं वैल्यूज रखूंगा बच्चों। EB इज व्हाट? दिस इज 1.38 इंटू 300 इंटू 2.303 इंटू 10 to the power minus 23 इंटू लॉग ऑफ Na कितना है बच्चों? 8 इंटू 10 to the power 20। Nd भी कितना है? 8 इंटू 10 to the power 20। 8 इंटू 8 ये बना 64। 10 to the power 20, 10 to the power 20, ये बना 10 to the power 40 डिवाइडेड बाई Ni स्क्वायर। Ni इज व्हाट? 2 इंटू 10 to the power 19। सो ये स्क्वायर बना 4 इंटू 10 to the power 38। क्लियर? तो इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं क्या बनेगा। सो EB इज व्हाट? तो इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ बच्चों। सो 1.38 into 300 into 2.303 which is 953.44 into साथ में है बच्चों 10 to the power minus 23 into log ऑफ, अगर मैं देखूं बच्चों 4 और यहाँ पे आ गया 16, ये 38, ये 40, तो यहाँ पावर आ गई 2, तो ये बना log ऑफ 16 इंटू 10 to the power 2। ठीक है, तो इस चीज़ को बच्चों हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है EB इज व्हाट? दिस इज 953.44 इंटू 10 to the power minus 23 इंटू log ऑफ A इंटू B मीन्स log ऑफ A प्लस log ऑफ B। तो ये कितना बनेगा? log ऑफ 16 प्लस log ऑफ 100। log ऑफ 100 मतलब 2 प्लस log ऑफ 16। तो मैं log ऑफ 16 कैलकुलेट करता हूँ विच इज़ 1.20। मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या कर रहा हूँ बच्चों में। वी आर यूजिंग वन प्रॉपर्टी, log ऑफ 16 इंटू 10 to the power 20 इज व्हाट? log ऑफ 16 प्लस log ऑफ 10 to the power 2। log ऑफ 16 तो मैं फाइंड आउट कर लूँगा, प्लस log ऑफ 2 कितना हो गया? 2 log 10, और हमारा बेस भी कितना है? 10। तो 10 का बेस के 10 के अकॉर्डिंग
कितना log आएगा, that is 1. So this is 2 into 1. So 2 plus log of 16. So log of 16 is what? This is 1.20 plus 2. So ये बना कितना बच्चों? EB is what? 953.44 into 10 to the power minus 23 into this is what? 3.20, which is equal to 3.20 into 953.44, which is 3051 into 10 to the power minus 23. तो अगर बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स को एडजस्ट कर दें तो मैं पॉइंट को इधर ले आता हूँ, 3 डेसिमल शिफ्ट कर देता हूँ. ई बी इज वॉट 3.051 इंटू 10 to the power क्या बन जाएगा 3 इंटू 10 to the power minus 23, विच इज इक्वल टू 3.05 इंटू 10 to the power minus 20. ठीक है, तो इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं अब. नाउ दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ जॉल्स, क्योंकि हमने के की वैल्यू रखी थी इन टर्म्स ऑफ जॉल. कितना आया हमारा 3.05 इंटू 10 to the power minus 20 जॉल. बट नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इट्स वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्ट. तो हमें पता है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट 1.602 इंटू 10 to the power minus 19 जॉल. तो 1 जॉल बच्चों क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 to the power minus 19. तो अगर हमें जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो वी विल यूज दिस फॉर्मुलेशन. सो EB इज व्हाट, दिस इज 3.05 इंटू 10 to the power minus 20. तो जॉल की वैल्यू है दिस वन, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 to the power minus 90. क्लियर. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों, सो दिस इज व्हाट 3.05 डिवाइडेड बाई 1.602, which is 1.90 into this is minus 20, this is minus 19, तो ये बच्चों हमारा -1 and this is इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो 10 to the power -1 मतलब 1.90 डिवाइडेड बाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आंसर आया हमारा 0.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो आंसर बच्चों हमारा कितना आया, एनर्जी बैरियर इज व्हाट 0.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बट हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल बैरियर, एंड पोटेंशियल बैरियर का मैंने ऑलरेडी बता दिया, फॉर्मुलेशन इज व्हाट EB डिवाइडेड बाई E. सो BB इज व्हाट, दिस इज EB डिवाइडेड बाई E. सो BB इज व्हाट EB इज व्हाट 0.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई E से E कैंसल, तो हमारा आंसर इज व्हाट 0.19 वोल्ट. तो ये बच्चों हमारा क्या है आंसर फॉर द पोटेंशियल बैरियर इन केस ऑफ PN जंक्शन. तो इस तरह के बाकी न्यूमेरिकल्स भी आप खुद ट्राई कर सकते हो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आप ध्यान से सॉल्व करके देखो. अगर आपको बच्चों मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.